Okay, good morning all. Let's continue with the database topic. Okay, so let's continue with the next part of the statement, that is your select statement. Now, this select command is used to retrieve information from a database. Select is the most important command because many questions they generally are asked from the select statement part. ज़्यादातर क्वेश्चन सेलेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं. Fine, and we have a lot of variation in this command, and we'll try to learn all possible things, right? So the syntax of select command is that we simply start with the select keyword, right? And select keyword से शुरू करेंगे. Right, select, then what all attribute list you want to add. Attribute means the names of the column that you want to show from name of the table. Then we put a where condition in between, right? So where condition is like if you want to select some particular portion from a table, that we can do from here. Just wait a second. I'll pause my recording so that बीच में disturbance ना हो. Okay, so continuing with this, so select statement, and then we put attribute list, and then from keyword is written, and then name of the table is to be written for where condition, which is optional, right? And then we in the end we put semicolon. Let's take an example of it. Now see here we have a table named teacher. Now, in this table there are in all 7 columns: teacher ID, first name, last name, gender, salary, date of birth, department number, and we have a number of values, rows into it. So this is the full table. Now, if I want to show only certain things from the table, like I want to show only those things where the teacher ID is 101. I want to show this record, complete first record. So उसके लिए मैं क्या query लिखूंगा? I'll write select star, select space देके star from the name of the table is teacher, where teacher ID is equal to 101. So this where clause क्या करेगा? इनमें से वही rows उठाएगा जो इस condition में mentioned है. So wherever we have teacher ID as 101, only that particular record will be shown, nothing else. You can see the output over here. Only one row is shown, nothing else is shown, right? See, this select statement picks up some value, some records from complete table. That doesn't mean it deletes other things. It is not deleting. Basically, it is picking the value. The table teacher remains the same. There's no change in it. हम सिर्फ उस टेबल टीचर में से कुछ वैल्यूज उठा के टेम्पररी टेबल बनाते हैं, राइट? तो टेबल वहीं का वहीं रहेगा, हम उसमें से वैल्यूज यूज करके विल फॉर्म अनदर टेबल, अ टेम्पररी टेबल व्हिच कैन बी शोन एज एन आउटपुट. सो दिस इज कॉल्ड एज क्वेरी मेकिंग. इसको हम बोलते हैं क्वेरी डालना. Query making means where we put a query to the software and software gives us a reply for the query based on the content that we have entered in the query. ठीक है ना? जैसे हमने यहाँ पे टीचर टेबल के लिए क्वेरी डाली है, तो टीचर टेबल में से सिर्फ वो वैल्यूज सामने आएंगी जो क्वेरी से रिलेटेड हैं, बाकी नहीं आएंगी. ठीक है? तो टीचर टेबल विल नॉट बी चेंज. टेबल अल्टर नहीं होगा, टेबल वैसे का वैसा रहेगा. सिर्फ it will give you the value, it will show you the values based on the condition that you have asked in the query. Fine. So that is quite simple. Select statement लगाओ, space लिखो, star लिखो. Star का मतलब होता है star. When you write star, that means it will show everything in the record, all things, all columns.
टीचर आईडी भी आएगा, फर्स्ट नेम भी आएगा, लास्ट नेम भी आएगा, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नंबर, ऑल वैल्यूज इट विल बी शो in that particular row record. Okay. Okay, see, I have made a little variation in this query. In the next thing, same table is there, query में थोड़ा change है. मैंने लिखा है select first name comma last name from teacher. तो यहाँ पे star नहीं लिखा. That means it will show only two columns, first name and last name, nothing else from this same teacher table. And I have added a query where salary is greater than 50,000. So क्या करेगा कि चेक करेगा सैलरी कहाँ कहाँ 50,000 से ज़्यादा है. ठीक है. Now this first record if you check 50,000 है, ज़्यादा नहीं है, right? So it will ignore this record. ये 48,000 है, ये 34 है, ये 38 है. This is greater than 50,000, right? तो इस वैल्यू के दो वैल्यूज ओनली, दो कॉलम्स. कौन कौन से? फर्स्ट नेम Tarannum and last name Malik. So these two things will be shown in the first record. ऐसे ही next 50,000 है, ये ज़्यादा नहीं है, this is greater than 50,000, 52,500. तो इनकी दो वैल्यूज क्या थी? पुनीत और नल. नेक्स्ट ये वैल्यूज आ गई. इसके बाद we'll keep on checking, right? All the values are lower than 50,000. Here at the second last row will again have a value more than salary more than 50,000. उसकी दो वैल्यूज क्या हैं? अनीता और घोष, वो आ गई. और लास्ट वाले रो में भी वैल्यू इज ग्रेटर देन 50,000 विल शो यू वंश एंड नल. ठीक है. तो ये आपका आउटपुट टेबल बन जाएगा. सो ऑलवेज इन सेलेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक दी कंडीशन, क्या कंडीशन गिवन है. बेस्ड ऑन द कंडीशन देन विल जो रोज कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं उन रोज में से जो भी इन्होंने कॉलम्स आस्क किए हैं क्वेरी में, वो वाले कॉलम्स के रिकॉर्ड हमने यहाँ पे आउटपुट में शो करने हैं. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज हम लोग यहाँ पे भी देखो सेलेक्ट स्टेटमेंट में क्या चेंजेस हैं. द टेबल इज सेम, टीचर टेबल वही, वैल्यूज वही, सब कुछ है. स्टेटमेंट में है सेलेक्ट टीचर आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा डीपीटी नंबर. तो हमने चार कॉलम शो करने हैं, टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डीपीटी नंबर. ठीक है. और फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 4 और डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 7. नाउ दिस कीवर्ड और इज इम्पॉर्टेंट हियर. और क्या करता है? और वी नो दैट और का मतलब है या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो या ये वाली कंडीशन, यानी कि दोनों कंडीशन हमने चेक करनी है इंडिविजुअली. जहां पे भी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड है विल पिक दैट रिकॉर्ड, राइट. सो लेट्स चेक दिस डिपार्टमेंट नंबर फर्स्ट. डिपार्टमेंट नंबर लास्ट वाला कॉलम है, इसमें देखो 4 और 7 वाली वैल्यूज कौन सी है. ये वाला जो फोर्थ रो है, राइट. थर्ड रो इज ऑल्सो कॉमन. थर्ड रो में 4 डिपार्टमेंट नंबर है. सो इसकी वैल्यूज कौन सी उठानी है? फर्स्ट नेम सुरभि, लास्ट नेम बंसल, और इसका टीचर आईडी इज 103 एंड डिपार्टमेंट नंबर इज 4. ठीक है. नेक्स्ट इज अगेन 4 ऑन द फोर्थ रो. सो इसमें व्हाट इज द टीचर आईडी? 104, फर्स्ट नेम मेघा, लास्ट नेम खन्ना एंड डिपार्टमेंट नंबर 4. तो ये दो रोज हो गई. उसके बाद ये 5 वाला सेटिस्फाई नहीं करता है, 2, 3, 1, 7 वाला सेटिस्फाई करेगा. 4 और 7 दोनों में से कोई भी एक हो तो हमें पिक करना है. तो 7 वाला भी पिक हो जाएगा. 7 वाले का टीचर आईडी 109 है, नेहा सिंह एंड डिपार्टमेंट नंबर 7. दिस इज द थर्ड रो. उसके बाद नो अदर डिपार्टमेंट नंबर वैल्यू सेटिस्फाइज द कंडीशन. सो आइदर 4 or 7, right? So these values will be taken. So ultimately we'll get this record. ठीक है. अब apart from or there is one more condition and. We can also write and here, but and और or में फर्क क्या है? और में होता है कि that both the conditions can be satisfied like department number is equal to 4 or department number is equal to 7.
तो और के केस में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन वी आर गोइंग टू पिक दैट रिकॉर्ड। इन केस ऑफ एंड में सिर्फ वही दो कंडीशंस जहां पे सेटिस्फाई हो रही हैं, ओनली दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी पिक्ड अप। अगर हम यहाँ पे और की जगह एंड कर दें तो क्या होगा, it will try to search where department number is written 4 as well as 7। अब 4 और 7 दोनों एक साथ किसी भी कॉलम में नहीं है, तो it will give you null record, ये blank record देगा, क्योंकि एंड लगाने से क्या होना है, 4 और 7 दोनों लाई करने चाहिए डिपार्टमेंट नंबर में, तो दोनों तो कहीं पे भी लाई नहीं कर रहे, तो it will give you null blank empty set, it will show you empty set मतलब there is no such record available। ठीक है, I'll take one more example। मैं एंड का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट स्टार मतलब सारे रिकॉर्ड शो करने हैं फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज 4 एंड जेंडर इज एफ। नाउ वी हैव टू कंडीशंस, बोथ द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो हमें डिपार्टमेंट नंबर 4 चाहिए और जेंडर की वैल्यू एफ चाहिए। अब पहले हम डिपार्टमेंट नंबर देखते हैं। हियर वी हैव 4, राइट, एंड corresponding value of gender column is also F, so this satisfies the thing। यहाँ पे दोनों चीजें हैं, तो इस केस में ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा डिपार्टमेंट नंबर 4 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी F है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो दिस रिकॉर्ड विल बी शोन। उसके बाद वी डोंट हैव 4 एनीवेयर, राइट। अगर मान लो कहीं और 4 होता और जेंडर में एफ नहीं होता, एम होता, तो वी आर नॉट गोइंग टू पिक दैट रिकॉर्ड। रीजन है इसके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे देखो ये एफ यहाँ पे काफी जगह पे है, बट इस एफ के साथ डिपार्टमेंट नंबर मैच नहीं कर रहा, तो ये रो नहीं पिक करेंगे। ये एफ सेटिस्फाइड है बट यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर इज नॉट मैचिंग, सो वी आर नॉट गोइंग टू पिक दिस रिकॉर्ड। ये दोनों कंडीशंस मैच होंगी तभी हम रिकॉर्ड को पिक करेंगे। दिस इज द कंडीशन ऑफ एंड ऑपरेटर, राइट। सो और में दोनों में से कोई भी हो जाता तो हम उसको पिक कर लेते। अगर इसी स्टेटमेंट में हम एंड की जगह और लगाएं तो क्या होगा, तो wherever you find f or wherever you find 4, all the records will be taken up। तो इस केस में ये वाला रिकॉर्ड भी आ जाएगा, f वाला, सेकेंड रिकॉर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, ये तो दो आएंगे ही। इसके बाद यहाँ पे f है, ये रिकॉर्ड भी काउंट हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो f, दिस इज ऑल्सो f, राइट, दिस इज ऑल्सो f and this also f। so all these records will be taken in case we change this and into or। अगर हम ये and की जगह पे और लगा दे तो, right। so you must be clear with and or now। चलो moving further, हाँ, there is one more very important clause called as distinct clause or distinct command। डिस्टिंक्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। जनरली विल गेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑफ डिस्टिंक्ट इन द फाइनल एग्जाम, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो उसको ध्यान से करना। अब मैं एक नीचे क्वेरी लिखी है, जस्ट शो यू दैट। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम टीचर वेयर जेंडर इज इक्वल टू एम, राइट। सो इट विल मैच द एम वाला जेंडर जो भी जहाँ पे भी है, मेल जेंडर जहाँ पे भी है, दीज आर ऑल एम। In all we have 5 records where M is there, right। so इनके जो डिपार्टमेंट नंबर्स हैं वो शो हो जाएंगे। इसका क्या है 2, इसका 3, इसका 1, इसका 8 और इसका 2। so we'll get this, right, you can see this output, right। so now the problem is that if you see thoroughly we'll get this 2 times here। ये 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर हम एक नॉर्मल कमांड उठाते हैं तो जितनी बार भी वैल्यू आए, भले वो 5 बार रिपीट हो, 10 बार रिपीट हो, इट विल शो ऑल एवरीथिंग एन नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार पूछिए। अगर ये 2 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 बार शो करेगा एज पर द ऑर्डर। ठीक है,
माइंडेड ऑर्डर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये हम ऊपर नीचे नहीं लिख सकते। जो पहला M है उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नंबर क्या है वो पहले आएगा, फिर नेक्स्ट M का उसके बाद, फिर नेक्स्ट M का उसके बाद, ये उसी ऑर्डर में आएंगे। पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर से 2 आएगा। ठीक है। बट इन केस आई डोंट वांट टू रिपीट वैल्यूज, मैं चाहता हूं कि भाई ये डिपार्टमेंट नंबर जो 2 बार लिखा जा रहा है वो रिपीट ना हो, तो रिपीट ना होने के लिए हमें ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड ऐड करना पड़ता है। रिमेंबर, इफ यू डोंट वांट टू रिपीट एनी वैल्यू in a condition in the select statement, then we add up distinct। तो ये distinct से क्या होगा, वो repetition को छोड़ देगा और बाकी जितने भी values हैं वो उनको show कर देगा। ठीक है। So all these values are shown without repetition। So first we have 1, then we have 2, we have 3, then we have 8। It will show you these values, right? तो repetition जो है 2 की repetition यहाँ पे count नहीं होगी। So this is the importance of distinct statement, right? So remember, distinct whenever we add, तो repetitions को वो avoid कर देगा outputs में, right? चलो move on to the next। हाँ, sometimes it is required to match part of the string। String means a group of alphabets, group of characters। स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई नाम, कोई सेंटेंस जिसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स को जोड़ के एक ग्रुप बनाया जाता है। स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। इसको हम स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग बोलते हैं, राइट। नाउ इफ यू वांट टू शो द नेम्स ऑफ all the participants, all the teachers whose name starts from S, right? अगर मुझे वही टीचर्स के नाम चाहिए जो S से शुरू होते हैं, इफ यू वांट टू डिस्प्ले दैट, उसके लिए हमारे पास एक क्लॉज है, एक कंडीशन है, लाइक कीवर्ड लगाते हैं। We can use like keyword along with 2 more reserved characters। There are 2 reserved characters we can add। एक है percentage sign और एक है underscore sign, right? So if you like, पहले मैं percentage बताता हूँ। Like if you see here, select first name from teacher where first name like S percentage। First name like S percentage means where first name column has the names starting from S and after S any number of characters are there। Remember this percentage का मतलब है कि S से शुरू हुआ और S के बाद जितने मर्जी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हों। हो सकता है नाम में 4 कैरेक्टर्स हों, हो सकता है 5 हों, 10 हों, 12 हों, वेरिएशन जितनी मर्जी हो, बट हमने सिर्फ वो देखना है कि पहला लेटर S होना चाहिए, उसके बाद किसी भी साइज का नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का वो नाम हो। Will pick all such values that you can see in the output here, right? The first one is Shania, the number of characters are 7। ठीक है। S के बाद 6 और हैं। ये सुरभि है, सुरभि में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 6। S के बाद 5 कैरेक्टर्स और लिखें, URBHI। ऐसे सौरभ में अगेन 7, सुमिता में अगेन 6। सो वेरिएशन है। S सिर्फ चेक करना है, उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने भी हों, राइट। सो परसेंटेज व्हेनेवर वी ऐड, दैट मीन्स के जो भी कैरेक्टर हमने पहले डिफाइन किया उसके बाद जितने मर्जी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हों, विल पिक ऑल सच वैल्यूज, राइट। बट इन केस ऑफ अंडरस्कोर, if we want to specify the number of characters, fix the number of characters, then we use underscore। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। Now here everything is same। हमने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम लाइक S और हमने how many times 1 2 3 4 5 times we have put the underscore, right? So that means all the names starting from S and after S we have 5 characters, total makes 6। तो यहाँ पे वो वही नाम उठाएगा जिसमें जो S से शुरू होते हैं और S के बाद जिसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। तो ये कंडीशन में सुरभि और सुमिता, ये 2 वैल्यू सेटिस्फाई होती हैं। सुरभि स्टार्ट्स विद S
S के बाद we have 5 characters. Again, Sumita also starts with S, and S के बाद we have 5 characters fixed. No other value. Shania is not taken, right? Because यहाँ पे S के बाद 5 की बजाय 6 characters हैं, right? Then Saurabh is also not taken. Reason is it starts from S, but after S we have 6 characters, and we specified 5 characters only here. अंडरस्कोर से जितने अंडरस्कोर लगाओगे उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें फिक्स स्पेसिफाई हो जाते हैं, ठीक है. So both ways can be used, both the things are can be used so parallelly also. So this is how we are going to select certain names, right? Certain string values. Strings are the group of characters from a table, right? Chaliye, let's move to the next point. Now this is order by. Order by is basically used to arrange the data in a particular order. Either it is descending or it is ascending. Now, if I want all the names in ascending order means alphabetical order, then I'll use this order by command. Let's see the query. Select first name, comma last name from teacher, order by first name, comma last name. Order by means order by के बाद जो कॉलम लिखा है पहला first name, तो it will check the first name column. फर्स्ट नेम कॉलम में जो जो वैल्यूज हैं वो उन सब को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके देन इट विल बी शोन. यू कैन सी हियर, राइट? ऑल आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. एल एस ए वाला ऊपर, उसके बाद डी, फिर एम, एन, एन, पी, एस, एस, एस. एस के अंदर भी वेरिएशन देखो. एस के बाद ए वाला आएगा पहले, फिर एस एच आ गया, फिर एस यू आ गया, और एस यू फिर से आया. तो एस यू में एस यू एम पहले आएगा, एस यू आर बाद में आएगा. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारा अरेंज हो जाएगा. फाइन, ओके. सो दैट्स इट. सो दिस इज ऑर्डर बाय कमांड. नाउ ऑर्डर बाय में दो चीजें और हैं कि बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर इज असेंडिंग. दिस इज असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट. अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करेगा. अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है देन यू हैव टू ऐड दिस कीवर्ड DESC एट द एंड. लास्ट में आपको DESC ऐड करना पड़ेगा. विल राइट everything same. Select first name comma last name from teacher, order by first name comma last name, then DESC. DESC will specify that we have to go with the table where things are shown in descending order. ठीक है. और बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर इज असेंडिंग ऑलवेज. अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो DESC तो वो असेंडिंग होता है. और इवन इफ यू वांट टू स्पेसिफाई यू कैन राइट ASC आफ्टर दिस. ASC विल आल्सो कन्वर्ट द थिंग्स इनटू असेंडिंग ऑर्डर. और अगर आप ASC नहीं लिखते हो तब भी वो असेंडिंग करता है क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग में असेंडिंग ही है, राइट? सो डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो देन यू हैव टू नीड टू स्पेसिफाई DESC एंड द एंड बिफोर द सेमीकोलन, राइट? दैट्स इट. सो नेक्स्ट, ये डिसेंडिंग का एग्जाम्पल है. यहाँ पे सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम DESC. सो वी आर गोइंग टू शो डिपार्टमेंट नेम कॉलम, और डिपार्टमेंट नेम को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है. तो डिपार्टमेंट नेम, आई थिंक दिस इज नॉट द एग्जैक्ट टेबल. ये टीचर टेबल है. देयर इज अनदर टेबल, डिपार्टमेंट टेबल. ये रहा डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है. तो वो इन सारे नेम्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहा है. फाइन. Fine, so the things are shown in descending order. Okay. See, this query is
to retrieve the names and department numbers of all the teachers ordered by department number and within each department ordered by the names of the teacher in descending order, right? So यहाँ पे क्या है कि teacher, let's see this query. Select first name comma last name comma department number from teacher. So we are going to show 3 columns here: first name, last name and department number. Order by department number ASC. So it will first arrange department number in ascending order. You can see this thing is in ascending order. Then first name in descending order. Last name is also in descending order. ये descending order में आएगा और last name फिर से descending order में. Now if you see here, ये proper descending order में नहीं है दोनों, right? The reason is that क्योंकि हमने पहले क्या लिखा है, डिपार्टमेंट नंबर ASC, राइट? पहले लिखा है डिपार्टमेंट नंबर ASC, तो वेरी फर्स्ट थिंग इट विल डू इज इट विल अरेंज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट नंबर, राइट, इन असेंडिंग ऑर्डर. उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर आने के बाद अगर आप देखो डिपार्टमेंट नंबर 1 जहाँ पे मैच हो रहा है, दोनों जगह पे डिपार्टमेंट नंबर 1 है, इसके अंदर वो फर्स्ट नेम को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएगा, फिर सेकेंड नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट? स्टॉप राइटिंग ऑन द स्क्रीन. सो ये बड़ा ध्यान में रखने वाली बात है. ऑर्डर बाय के बाद जो पहला कॉलम है, पहले उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर लगेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग. लाइक इन दिस केस डिपार्टमेंट नंबर ASC, तो डिपार्टमेंट नंबर असेंडिंग में आ गया. उसके बाद जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर सेम है, जैसे 2 कॉमन है, 2 कॉमन होने के बाद ये तरुण T वाला पहले आया, वंश उसके बाद आया, ठीक है? अगर ये नेम सेम होते, दोनों तरुण तरुण होते, तो फिर उसके बाद थर्ड ये देखना था हमने, लास्ट नेम, फिर इसको ऑर्डर में डालना था, राइट? सो दिस इज द थिंग वी मस्ट बी वेरी क्लियर विद, कि जो भी हमने यहाँ पे ऑर्डर डाला है तो पहले सबसे फर्स्ट कॉलम को ऑर्डर में डालेंगे, उसके बाद बाकी के, ठीक है? जहाँ पे ऑर्डर फर्स्ट के ऑर्डर सेम आए, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम विल चेक. So wherever department number is same, we'll see the first name, and wherever first name is same, then we'll see the last name. Okay? चलिए next. Now to test where a value is available or unavailable or not applicable, that is null value. So wherever you want to check that in any case, in any column we have a null value or not, उसके लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं, is null and is not null, right? If you want to check कि भाई टेबल में किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर there is a null value or not, for that we can add up is null, is not null, right? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है, बिकॉज इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन होता है. कंफ्यूजन ये है, पहले मैं कमांड्स एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, select star from teacher where last name is null. Star means everything, all the values in each columns. जिस कॉलम में लास्ट नेम कॉलम के अंदर नल वैल्यू है, सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड्स, पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स हमने शो करने हैं. तो लास्ट नेम में नल वी हैव हेयर, पुनीत के का लास्ट नेम नल है, तो एक रिकॉर्ड ये पूरा का पूरा शो होगा. उसके बाद इफ यू सी लास्ट में वंश का लास्ट नेम नल है, तो दिस कंप्लीट रिकॉर्ड विल बी शो. इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इज दैट इज कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली हम लोग बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, हम इज की जगह पे इक्वल टू डाल देते हैं, राइट? ये बहुत ध्यान रखना है कि हम नल वैल्यू जब भी चेक करेंगे, इज नल will write is null, not equal to null, right? So where last name is null, where last name equal to null is wrong. Generally बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, equal to डाल देते हैं, तो equal to is not right way of writing. null को चेक करना है तो is null और is not null.
इन केस वी पुट इज नॉट नल हेयर इन दिस केस, तो क्या होगा कि जो नल नहीं है वो वाला रिकॉर्ड शो होंगे, तो ये 2 रिकॉर्ड छोड़ के बाकी जितने रिकॉर्ड हैं वो सारे शो हो जाएंगे। इफ यू राइट इज नॉट नल हेयर, राइट, if you change this statement, let's select star from teacher where last name is not null, so it will not show you these 2 records, ये पुनीत और वंश वाले 2 रिकॉर्ड छोड़ के बाकी सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो शो कर देगा। फाइन, सो रिमेंबर wherever we need to check null, वहां पे आपको is null लगाना है, equal to null नहीं लगाना, राइट। ये है where we can have another query in the where clause of SQL statement if the condition is based on the results of other queries as shown below. Like if you want to retrieve the names of all the departments having female teachers. So now here we have 2 tables, 2 tables हैं, यहाँ पे आ जाता है 2 tables का joining, ठीक है, 2 tables को join करके उनमें से values उठानी। इसका भी क्वेश्चन हमारे एक बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, राइट। सो ये कैसे वर्क करते हैं, हमें एक्चुअली यहाँ पे करना क्या है, वी नीड टू रिट्रीव द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। हमें वो डिपार्टमेंट शो करने हैं जिसमें जो फीमेल्स जो हैं वो टीचर्स हैं, जहाँ पे जेंडर जो है वो एफ है, ठीक है। Now gender lies in the teacher table whereas department name lies in the department table. Both the tables are different, right? So इनको कैसे लिखेंगे, we'll write select distinct department name. Now why we have added distinct, because department name तो कई बार होगा, तो वो हम repetition avoid करेंगे। अगर department name let's say chemistry comes 2-3 times, so we'll write only 1 time. So select a distinct department name from department where department ID in. Now why we have written department ID, if you see here दोनों tables में common column कौन सा है, in this table, department table, department ID is there, and in teacher also will have the same name of column. That means here in one of the tables it will be a primary key, in other table it must be a foreign key, ठीक है। अब यहाँ पे वो प्राइमरी है क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशंस नहीं हो रही हैं, तो ये डिपार्टमेंट नंबर जो है ये प्राइम फॉरेन की है, यहाँ पे रेपिटेशंस है, ठीक है। इसका मतलब हमें डिपार्टमेंट आईडी का रेफरेंस देना पड़ेगा। सो विल राइट वेयर डिपार्टमेंट आईडी जो कॉमन कॉलम है, इन कीवर्ड लगा के पुट अ ब्रैकेट, उसके बाद फिर से सेलेक्ट स्टेटमेंट इस टेबल के लिए, सेलेक्ट डीपीटी अंडरस्कोर नंबर फ्रॉम टीचर वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे डीपीटी नंबर सेलेक्ट करेगा जहाँ पे एफ जेंडर है, राइट। तो ये सर्च कैसे करेगा, पहले ये जेंडर चेक करेगा एफ, इसका डीपीटी नंबर 1 है, 1 डिपार्टमेंट नंबर का डिपार्टमेंट नेम क्या है, केमिस्ट्री है, इट विल शो यू केमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट एफ कहाँ पे है, दिस, इसका डिपार्टमेंट नंबर 3 और 3 का डिपार्टमेंट नेम क्या है, इंग्लिश, सो नेक्स्ट विल बी इंग्लिश। So likewise, it will check all the female candidates and their department numbers and corresponding department names. And we are using only department name, तो सिर्फ department name show होंगे, बाकी नहीं होंगे, right? So this, so with this we'll come to end today. Because time is running up. So I'll share this presentation again to you people after some time. So go through it. And I'll share the video of this recording also, so go through it, and we'll discuss the things and whenever the next time comes, right? So practice again, telling you to practice again, practice these things at home, go through the things, go through the presentation. Fine, we'll meet again tomorrow. Fine, so that's all for today from my side. Okay then, the doubts and all will take up tomorrow. You go through it first. कल हम पहले discuss करेंगे, उसके बाद हम लोग next part of the lesson we start. ठीक है, चलो then, okay, bye.